بہت ساری چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تشبیہن ہے. مسیح خداوند نے جب تنسینوں میں بات کی تو تشبیہن کی، ایک بیج بونے والا نکلا، یہ تشبیہ تھی. جال، اس نے کہا بادشاہی کا، آسمان کی بادشاہی کے جال کے جیسے کیا، یہ بھی تشبیہ تھی. مسیح خداوند لوکا 12:35 میں دو چیزیں جو واضح کرتے ہیں وہ تشبیہن ہے. قبر کا کسنا اور مشعل کا یعنی دیپ یا چراغ کا جلنا. مسیح خداوند نے کہا تمہاری قبریں بندی رہے اور تمہارے چراغ جلتے رہے. میں نے کہا چراغ کا جلنا، ہماری اسپرچل لائف کا بیدار رہنا، یہ اس سے مقصود ہے، یہ اس سے مراد ہے کہ تم بیدار رہو، حالات تمہیں مار نہ پائیں، بیماریاں تمہیں ٹھنڈا نہ کر پائیں، غربت اور تنگی تمہیں غریب اگرچہ ہو پر تمہاری بیداری پر وہ اثر نہ انداز ہو. بولو آمین. اس لیے میں نے کہا وہ چیزیں جو شیطان ہماری زندگی کی طرف لے کے آتا ہے، چاہے وہ سمندر کی یا لہروں کی طرح یا ایک آندھی کے جیسے ہو، پر ان کا ہماری اسپرچل لائف پر کچھ بھی اثر ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم ان چیزوں کو مسلط کریں اپنے اوپر یا ان کو فیس کریں ہمت سے اور دلیری سے. میں نے کہا خدا حالات بگڑے ہوئے ہمیں اس لیے نہیں دیتا کہ ہمیں وہ بگاڑے، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ ہم انہیں فیس کریں اور انہیں جیتیں اور اپنی وکٹری کو کھڑا کریں، تاکہ زمانے کے لوگ ہماری فتح کو دیکھ کر یسوع مسیح کے نام کو اونچا دیکھیں. آمین. یہاں پر چراغ کا جلنا ہماری بیداری کی تشبیہ ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ہماری زندگی کے اندر ایسے ہوتا ہے، کبھی بہت بیدار اور کبھی بہت ٹھنڈے، کبھی بہت اونچائیاں اور کبھی زوال، کبھی گھنٹوں دعائیں کرنے کو من کرتا ہے اور کبھی 10 منٹ من کرتا نہیں دعا کرنے کو، کبھی ہفتے میں 2-3 روزے رکھنے کو دل کرتا ہے اور کبھی روزے رکھنے کو دل کرتا ہی نہیں، اور کبھی بائبل سٹڈی کرنے کو دل کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا. پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسیح سے دور ہو چکے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر نبیوں کے ساتھ یہ ہوا تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا ضرور ہے. نشیب و فراز ہماری زندگی میں آتا ہے، کبھی گھاٹے، کبھی اونچائیاں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. میں نے کہا وہی ایلیا تھا جو کبھی جا کے بادشاہ سے چیلنج کرتا ہے، اور وہی ایلیا تھا جو عورت کے ڈر سے ڈر کے بھاگا اور جنگلوں کے بیچ میں رہا. وہی سلیمان تھا جس کو خدا نے بلیس کیا، پر وہی سلیمان تھا جو اور عورتوں سے شادیاں کر کے خدا سے دور ہوا. وہی سمسون تھا جو کبھی شیروں کو مارتا ہے اور کبھی موابیوں مدیانیوں کو مارتا ہے، لیکن وہی سمسون تھا جس کی پروفیسی کو شیطان نے اندھا کر دیا، لیکن بعد میں خدا نے پھر اسے بحال کیا. ہمارے لیے یہ پرابلم نہیں کہ ہم بڑھ کیوں نہیں رہے، ہمارے لیے پرابلم اصل یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر چکے ہیں کہ اس خداوند یسوع مسیح کی نصیحت کو بھول چکے کہ تمہارا مشعل کا جلنا ضرور ہے، تمہارے چراغ کا روشن رہنا ضرور ہے. سب لوگ آمین. اگر چراغ جلتے رہیں گے، اگر ہم بیدار رہیں گے، تو طوفان تو چاہے کتنے بھی زور کے ہوں وہ ایک نہ ایک دن ضرور اپنا رخ موڑیں گے. وہ ایک نہ ایک دن ہمارے منہ کو دیکھ کر اپنی شکل کو بدل لیں گے، اپنے رخ کو وہ چینج کر لیں گے. لیکن یہ ہمارے اڑے اور کھڑے رہنے سے ہے، یہ ہمارے اڑے اور کھڑے رہنے سے ہے. لیکن اگر حالات کو دیکھ کر ہم ان کے آگے لگ کے بھاگیں تو یہ سوچ لو کہ ہمارا وہ کیا حال کریں گے. لیکن اگر فیس کریں گے تو ایک نہ دن ان کو بدل نہیں پڑے گا. اب دوسری چیز جو مسیح خداوند نے کہا کہ تمہاری کمریں بندی رہی. کیا مسیح خداوند نے اس کمر کی بات کی کہ ہمیشہ اسے پٹکا مار کے رکھو، اسے کس کے رکھو، ٹائٹ رکھو؟ ہماری اسپرچل لائف کی کمر اور ہے، ہماری شریرک، ہماری جسمانی زندگی کی کمر اور ہے. ہماری جسمانی زندگی کی کمر تو یہ ہو سکتی ہے، پر ہماری اسپرچل لائف کی کمر یہ نہیں جس کی بات مسیح خداوند نے کی. آئیے پڑھیے ذرا میرے ساتھ پہلا پترس اور اس کا پڑھیں گے پہلا باب اس کی 13ویں آیت سے. اس واسطے اپنی عقل کی کمر کو باندھ کر ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جس کا
रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त उसने कहा तुम पर होने वाला है। सब बोलो आमीन। इस वास्ते अपनी अकल की कमर को क्या करो, बांध कर, होशियार होकर। इस वास्ते अपनी अकल की कमर। अब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की कमर कौन सी है? बाइबल बताती है ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारी कमर है, और यहां पर लिखा है उसे बांधो, उसे कस के रखो। और मसीह खुदावन ने अनाजील के अंदर ये कहा अपनी कमर को कसो और चिराग तुम्हारे जलते रहें। और यहाँ पर पतरस ने उसी कड़ी से कड़ी मिलाकर कहा कि असल में हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की जो कमर है वो हमारा दिमाग है, हमारी अकल, हमारा फहम, हमारी बुद्धि ज्ञान है। अब बाइबल क्या बताती है? इसे कलाम के नॉलेज से भरो। अब बाइबल क्या बताती है? इसे कलाम की हिकमत से भरो। और मैं सच्ची बताता हूं, वो आदमी जो अपनी लाइफ के अंदर कभी बाइबल को टाइम नहीं देता वो इसको कस नहीं पाता। वो मसीही जो बाइबल को टाइम नहीं देता, पर्सनल लाइफ में से पढ़ता नहीं, वो इसे कसने की तैयारी नहीं करता। लेकिन साफ लिखा है इसी वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फसल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। आमीन। सवाल ये है हम अपनी अक्ल को रोशन करने के लिए कितना इससे ज्ञान लेते हैं। हम अपने फहम को ऊंचे दर्जे का ये समझ लो नूर और उसको मुनव्वर करने के लिए इसकी बातों को कितना अपनी जिंदगी पर लागू करते हैं। क्योंकि जो बाइबल नहीं पढ़ पाता वो इसको कस नहीं पाता, जो बाइबल को टाइम नहीं दे पाता वो असल में अपनी अकल को कसने का टाइम नहीं दे पाता। लेकिन बाइबल साफ बताती है हम शैतान का तभी मुकाबला करेंगे जब हमारी कमर कसी होगी। एक सिपाही अपने मध्य मुकाबले से तब तक वो जीत नहीं पाता जब तक उसकी ये जिस्मानी कमर बंदी नहीं है उसे लड़ने के लिए। अगर वो ढीला पड़ा है तो उसका मध्य मुकाबले वाला उसे मारेगा, लेकिन अगर ये चौकस और अपने आप को कस चुका है उसे मारने के लिए तो वो जीतेगा ही जीतेगा। और यही असूल हमारी रूहानी जिंदगी पर है, क्योंकि रूहानी जिंदगी की जो फाइट है वो कहां पर लड़ी जाती है? बाइबल बताती है ये वो हिस्सा है जिसके अंदर हमारी रूहानी जिंदगी की जंग रहती है। सोचों से अगर हम जीत पाए, सोचों से हम उन पर गालिब आ पाए तो हम शैतान पर गालिब आ पाए। क्योंकि इस बॉडी के अंदर जो कुछ ज़हूर में आता है वो यहाँ पर तश्कील दिया जाता है, उसे यहाँ पर पहले तकमील मिलती है और तब वो चीजें हमारे बदन के अंदर आती हैं। हम सोचते हैं और फिर करते हैं, और जो काम बगैर सोचे किया जाता है वो सही नहीं होता, और जो सोच के किया जाता है वो सही होता है, क्योंकि यहां से हमें यह हुक्म सादर हुआ कि वो करो। और बाइबल क्या बता रही है? अगर हम अपनी रूहानी जंग को जीतना चाहते हैं, अगर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बना के रखना चाहते हैं, तो बाइबल क्या बताती है? इसे रोज कसो, इसे नॉलेज से भरो, हिकमत से भरो, इसे बातों से भरो। एक मसीही अगर बाइबल नहीं ना पढ़ता तो 80% वो क्रिश्चियन नहीं है, 80% वो क्रिश्चियन नहीं, क्योंकि ये चीजें उसकी क्रिश्चियन लाइफ को बनाती हैं। अब उसे ये पता नहीं कि बाइबल के अंदर झूठ बोलना मना है और वो झूठ बोल रहा है तो वो कैसे मसीही है। अब उसे ये पता नहीं कि बाइबल के अंदर चोरी करना मना है तो वो चोरी कर रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा। अगर उसे ये नहीं पता कि पाप करना मना है तो वो बाइबल के अंदर अगर पढ़ेगा नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा। यानी हमारी अंदरूनी जिंदगी को ये वो किताब है जो हमें बनाती और संवारती है। सब बोलो आमीन। शैतान को पता है जब हमने इसे पढ़ा हम संवरना शुरू होंगे। शैतान को पता है जब हमने इसको पढ़ा हम बदलना शुरू होंगे। शैतान को पता है जब हमने इसको पढ़ा हमारी अकल रोशन होना शुरू होगी। शैतान को पता है जब हमने इसको टाइम दिया हम अपनी अकल को कसना शुरू करेंगे, और तब शैतान जब हमारे पास ऑफर लेके आएगा हम उसे कह पाएंगे ये करना मुझे रवा नहीं है, वो करना मुझे रवा नहीं है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, नबियों की जिंदगी को जब हम देखते हैं वो भी मुतालिया करने वाले थे,
जब रसूलों को देखते हैं वो भी मुतालिया स्टडी करने वाले थे, और जब हम उनके नक्शे कदम पर चलने के दावेदार हैं और उनके जैसे हम ऊंचे करैक्टर में जीना चाहते हैं, तो बगैर बाइबल पढ़े, बगैर बाइबल स्टडी किए हमारे ना तो रास्ते खुल सकते हैं और ना हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बन सकती है। हम बाइबल के अंदर साफ पढ़ते हैं, रसूलों ने भी अगर मुकाबला किया शैतान का तो बाइबल के बीच में से, अगर मसीह ने भी मुकाबला किया तो बाइबल के बीच में से। और जब हमें नहीं पता कि हम बाइबल नहीं पढ़ रहे और हम शैतान के सामने आके आ मैं तेरे साथ लड़ने आया, उसे पता है ये बेवकूफ है। अगर ये चौकस और अक्लमंद होता तो उसे पता होता कि बगैर बाइबल के नॉलेज के वो मेरे साथ लड़ नहीं सकता। लिखा है इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की, आगे पढ़िए जरा, हमें इसको बांधना कैसे है इस्सियों का खत देखो। अगर ये तो वाज़ेह हो गया, ये तो वाज़ेह हो गया कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की कमर हमारी अकल है, लेकिन 6 बात को देखो जरा क्या लिखा है। 6 बात की 14 आयत से पढ़ेंगे। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, इन तीनों आयतों को जरा देखो। क्या इन तीनों आयतों का भेद एक जैसा नहीं है? क्या ये तीनों आयत सच्चाई एक जैसी बयान नहीं करती? मसीह खुदावन ने लूका 12:35 में कहा अपनी कमर कस के अपनी चिराग को जलाए रखो, और पतरस पहले बात में कहता है कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल लाइफ की कमर है वो तुम्हारी अकल है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मसीह खुदावन ने क्या कहा? अपनी कमर को कसो। और मैंने कहा जब मसीह के ये अल्फाज हम पढ़ते हैं तो वो कौन सी कमर की बात करते हैं? पतरस इस बात का जवाब देता है कि वो अकल तुम्हारी कमर है। स्पिरिचुअल लाइफ की जो अकल है वो कमर और रीढ़ की हड्डी का काम करती है। और यहां पर पौलुस ने उसी कड़ी से कड़ी मिलाते हुए कहा बस सच्चाई से अपनी कमर को कसो, सच्चाई से अपनी कमर को कसो। आज दुनिया के अंदर हमें अकीदों और तालीमात और नजरियात का ढेर नजर आता है। आमीन। हमें ये पता चलता है हर तंजीम, हर डिनोमिनेशन का अलग से एक अकीदा है, हर डिनोमिनेशन का अलग से फेथ और उनकी अपनी तालीम और नजरियात है। लेकिन अगर हमें सच्चाई का पता होगा तो हम इसको आसानी से कस पाएंगे। सोचिए जरा, अगर हार्ट पेशेंट है और उसे डॉक्टर लिख के देता है कि जाओ ये अद्वियात इस्तेमाल करना, और उसे वो अद्वियात उसी शक्ल में 2 नंबर मिल जाती है और वो लेता है 1 महीना, क्या उसे फाका होगा? उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे तसल्ली तो है कि वही चीजें मैं ले रहा हूं, ये वही मेडिसिन है जो डॉक्टर ने लिखी है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि वो उसे 2 नंबर मिल गई। और यही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, मसीही दुनिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही शैतान ने रच दिया है कि लोगों को नजर आए कि ये तालीम सही है, लोगों को पता चले कि यहाँ पर सही कुछ बताया जाता है, पर अगर उनको वाक़ा नहीं पड़ रहा, उनकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही। हम क्या पढ़ रहे हैं? बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। मैंने कहा अगर एक मसीही ये समझ पाए कि सच्चाई कौन सी है और झूठी तालीम कौन सी है, तो उसे उन चीजों को लेने में आसानी होगी, उसे उन चीजों को लेने में आसानी होगी। पर वो कैसे लेगा? कैसे लेगा वो? अगर बाइबल नहीं पढ़ता तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी तालीम या कौन सा अकीदा या कौन सा नजरिया सही है? अगर वो बाइबल का तालिब इल्म नहीं, स्टूडेंट नहीं वो बाइबल का, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो जो भी उसका हाथ पकड़ेगा वो चल देगा और चलो जी दुआई करनी है ना, और ये भी कलाम सुनाता, पर पता नहीं कि वो क्या सुना रहा है। हमें वाइस 10 बाब में पढ़ने को मिलता है कि मुर्दा मक्खियां अतार के अतर को बदबूदार कर देती हैं। वाइस 10 की 1 में लिखा है कि मुर्दा मक्खियां अतार के अतर को बदबूदार। अतार कौन है? मुर्दा मक्खियां कौन है? और अतर कौन है? 3 चीजें यहां पर सुलेमान ने कही। अतार जनाब मसीह है,
اور عطر اس کا کلام ہے، اور مردہ مکھیاں وہ جو اس کے کلام میں آمیزش پیدا کرتی ہیں، اس کی سچائی اور اس کی صداقت کو ماند کرنا چاہتی ہیں۔ اور سچ میں جب ہم یہاں معاشرے سماج میں نظر دوڑاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو سچائیوں کے اندر آمیزش کرتا ہے، کیونکہ بائبل صاف بتاتی ہے سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی کیا باندھ کے رکھے گی؟ بائبل میں لکھا ہے آزاد کرے گی، وہ تمہیں کیا کرے گی؟ وہ آزاد کرے گی۔ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور یہاں پر پاولس بھی اسی سچائی کی بات کرتا ہے، اپنی عقل کو سچائی سے کسو۔ شاید لوگ سال ہر سال سے چرچ جاتے ہیں پر لائف میں کچھ چینجنگ نہیں، سال ہر سال سے چرچ جا رہے پر کوئی گواہی نہیں، سال ہر سال سے چرچ جا رہے ہیں پر ابھی بھی جتنے پہلو ان کے ساتھ جڑے ہیں وہ سارے مردہ پڑے ہیں۔ سال ہر سال سے وہ مسیحی کہلاتے ہیں پر ایک بھی مسیحی ہونے کا جیسا کام ان کے جیون میں نہیں ہے۔ بائبل صاف بتاتی ہے اگر وہ نہیں پڑھتا اسے نہیں پتا چلتا کہ اپنی عقل کو کیسے کسنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے سچائی سے اپنی کمر کو کسو۔ کیا لکھا ہے افسیوں کے خط میں 6:14 میں؟ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر راست بازی کا بختر لگا کر۔ اپولس کون سی کمر کا بات کرتا ہے؟ اسے بھی اس کمر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، پترس کو بھی اس کمر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور مسیح کو بھی اس کمر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تینوں ہماری اسپرچل یا روحانی زندگی کی فکر میں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر اس کو ایک مسیحی نے نہیں کسا تو اس کی ساری زندگی ڈھیلی پڑی ہے۔ شیطان کبھی بھی آئے کبھی بھی جائے اسے نہیں پتا، لیکن ہم بائبل کے اندر ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کو پتا چلتا ہے ہاں ان لوگوں نے برے حالات میں بھی اپنی کمر کو کس کے رکھا ہے، ان لوگوں نے حالات اور واقعات کیسے بھی کیوں نہ ہو انہوں نے اپنی کمر کو سچائی کو پکڑ کے رکھا ہے۔ سب بولو آمین۔ یوسف کی کتنی بڑی دکھی زندگی تھی، بھائیوں سے دکھ اٹھایا ہے، باپ سے دکھ اٹھایا، اور بائبل بتاتی ہے بھائیوں سے دکھ اٹھایا، انہوں نے مارا اور بیچ ڈالا، لیکن سچائی کا اس نے دامن نہیں چھوڑا۔ اور ایک ٹائم آیا وہی شیطان اس کے پاس آفر لے کے آیا، چلا میرے ساتھ اپنا دکھ بھول جائے گا تو۔ یوسف اس زمانے میں یہ شرع لکھی نہیں تھی، یہ شریعت نیم لکھی صورت میں نہیں تھے، پر اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا یہ کام مجھے کرنا روا نہیں ہے جو تو آفر مجھے دیتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کی عقل کو اس نے کس کے رکھا ہوا تھا۔ ایک مسیحی آزمائش میں کیوں گرتا ہے؟ ایک مسیحی شیطان کی آفر کو کیوں قبول کر لیتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس کو کسا نہیں ہے، اور شیطان کی شخصیت کو اسے پہچاننے میں دشواری ہے، پر شیطان کو اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے یہ وہ مسیحی نہیں جو تیار شدہ ہے، بلکہ یہ عام لوگوں کے جیسے ایسے کبھی بھی میں گرا سکتا ہوں۔ لیکن سنو، ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں وہ لوگ جو مشکل حالات میں بھی سچائی کے ساتھ کھڑے رہے، خدا نے ان کے لیے سرفرازی اور عزت کے راستے کھولے اور ان کی گواہی کھڑی کی، اور زمانے کے لوگوں نے کہا نہیں ان کا خدا مبارک ہے، ہمارے دیوتا اور بھگوان جھوٹے ہیں۔ سب لوگ آمین۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہمیں بائبل صاف بتاتی ہے اپنی عقل کی کمر کو باندھو، اور کہا کہ اپنے چراغ جلا کے رکھو، اپنے چراغوں کو جلا کے رکھو، آندھیاں بجھا نہ پائیں، طوفان بجھا نہ پائیں۔ اب چراغ مطلب ہماری بیداری ہے۔ دانیل دن میں 3 بار دعا کرتا ہے روز۔ آج حالات کیا کر رہے ہیں؟ اب دعا کی تو مار دیا جائے گا، شیروں کی مات میں ڈال دیا جائے گا، اور دانیل کو یہ پتا ہے آج میں نے دعا کی تو میں مروں گا ہی مروں گا۔ پر دانیل نے کیا اپنے چراغ کو بجھنے دیا؟ آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان کے جھٹکے لگ رہے ہیں، پر بائبل بتاتی ہے وہ معمول کے مطابق حسب معمول اسی ٹائم یروشلم کی کھڑکی کھول کر جھکا ہے خدا کے سامنے، اور اسے یہ پتا ہے اب میں نے گھٹنے اگر لگائے تو پھر لگا نہیں پاؤں گا، اگر اب گھٹنے ٹیکے تو پھر ٹیک نہیں پاؤں گا، اور چلو آج نہ ٹیکے، 1 مہینہ نہ ٹیکے تو کیا بات ہے، کیا بگڑ جائے گا؟ اور خدا سے کہہ سکتا ہوں جان ہے جہان ہے، آج اپنی جان کو چاہتا ہوں کل دعا کر لوں گا، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔
हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, उसे पता था मुझे अपने चिराग पर काम करना है, मुझे अपनी कमर को कस के रखना है। क्योंकि क्या कानून पास हुआ था, कोई किसी भगवान मूर्ति अपने खुदा के सामने ना जाए, सीधा बादशाह के सामने आए। पर दानियल को पता था जो शराब मेरे दिल पर और यहाँ पर लिखी है, वो कानून उसको काटने पर आमादा हो चुका है, उसके बरक्स है वो। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, वो लोग जीते, अपनी गवाही उन्होंने खड़ी की और ऊंचे कैरेक्टर के वो मालिक ठहरे। और आज उन्हीं के किरदारों से हम सीखते हैं, पर ये सीखिए कि वो क्या कर पाए और कैसे जीत पाए। आमीन। साफ बाइबल बताती है, अपनी कमर को कसो, और पतरस ने कहा वो अकल तुम्हारी कमर है। और यहां पर लिखा है सच्चाई से अपनी कमर को कसो। आपको पता है होशिया की किताब में क्या लिखा है? होशिया की किताब में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। कैसे हलाक हुए? अदम मार्फत, अदम किसी चीज का ना होना, मार्फत कलाम इलाही की वाकफियत। उसने कहा, होशिया से खुदा ने कहा, अगर मेरे लोग मर रहे हैं, अगर मेरे लोग हलाक हो रहे हैं, तो एक ही कारण है, वो क्या? सच्चाई उनके हाथ में नहीं है, सदाकत का पहलू उन्होंने नहीं पकड़ा। कहा मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। और सच में मैंने कहा आपको, अगर एक मसीही को नहीं पता कि सच्चाई क्या है, सदाकत क्या है, तो वो हकीकत में हलाक ही होगा। उसे पता नहीं चल पाएगा कि मुझे कैसे अपनी जिंदगी को जीना है। यशायाह की किताब में लिखा है, जहालत के सबब से मेरे लोग असीरी में गए। गुलामी में कैसे गए? जहालत के सबब से। अकल नहीं कसी, अपनी अकल पर काम नहीं किया, अपनी अकल पर काम नहीं किया। और जब पालूस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल बताती है, वो कैद खाने में भी अपने शागिर्दों को कहता है, तुम मार लेते आना, वो सहीफे लेके आना मेरे लिए। क्यों? वो स्टडी करने का उसे भूख थी, और वो कैद खाने में भी अकेला बैठना नहीं चाहता, किताबों के साथ रहना चाहता है। और बाइबल बताती है, अगर पालूस या दूसरे रसूल, उनके पास नया ऐतनामा नहीं था, उनके पास अंजील मुकद्दस नहीं थी, वो पुराने ऐतनामे से जनाब मसीह को साबित किया करते थे। आमीन। उनके पास पुराना ऐतनामा था, लेकिन ये सोच ले कि पुराने ऐतनामे के वो इतने माहिर थे कि खोज के जनाब मसीह को वो निकालते और यहूदियों के सामने साबित करते कि देखो तुम्हारी तौरात में, तुम्हारे सहीफों में ये लिखा है, और मसीह यही है। और हमारे पास नया अहदनामा, पुराना अहदनामा दोनों मौजूद हैं, लेकिन इसको कसने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। शायद हम ओवर टाइम लगाएं, जब फ्री हो मूवी पर टाइम लगा दें, पिकनिक दोस्तों यारों के साथ टाइम सर्व करें। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं, हमें हर रोज शैतान विजिट करता है, हर रोज 24 घंटों के अंदर हर रोज हमें वो देखता है। और जब हम चूकेंगे, जब गिरेंगे, तो उसी के सबब से गिरेंगे, क्योंकि उसे पता है ये उस चीज पर ध्यान कर नहीं पा रहा जो इसकी लाइफ को बनाए। हमें अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बाइबल मुकद्दस को टाइम देना है, इसे पढ़ना है, ताकि हम अपनी जिंदगी को बना पाए। और सच में जो दुनिया में हमें चाहिए वो सब इसके अंदर है। और मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज देता हूं कि हर वो मसला जिसके पास किसी इंसान के पास उसका हल नहीं, अगर वो बाइबल पढ़े, एक हफ्ता नहीं तो एक महीना, पर वो गवाही के साथ जरूर आएगा, क्योंकि ये बाइबल उससे बोलेगी सेम उसकी कंडीशन के मुताबिक, सेम उसकी प्रॉब्लम से मेल खाती बातें उससे बोलेगी, और उससे छुटकारे के लिए बात बोलेगी। आमीन। हम बाइबल के अंदर ये सीखते हैं, लेकिन यहाँ जब हम और एवेंजलिस्ट और बड़े बड़े खादमों की गवाहियां सुनते हैं, वो जो गैर अक़वाम से आए वो भी यही बताते हैं, जब बाइबल को पढ़ा तो बाइबल ने हमारी दुनिया बदल दी, हमारी जिंदगी बदल दी। उनकी जिंदगी बदल गई, पर मसीहों की जिंदगी नहीं बदली। आज भी शराब, आज भी चर्च, आज भी बुरी संगतें, सोबतें। मैं कहता हूं वो गैर अक़वाम के लोग वो बाइबल को पढ़ने से बदल गए, पर हम अपनी आज उन्हीं बुरी आदतों के अंदर जीते हैं। और अगर लड़ ना पाए तो जीतेंगे कैसे? और अगर जीतना चाहते हैं तो इसका ज्ञान जरूरी है।
आइए अपने स्वर को झुकाएंगे, ये खुदावंद का ग्रेस मांगे ताकि हम अपनी अकल को कसने पर काम कर सके। क्योंकि मसीहा के अल्फाज थे लूका की अंजील में, मसीहा ने कहा कि तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे चिराग जलते रहे। मैंने कहा मसीहा की आयत मुकद्दसा जो उन्होंने बोली दो चीजों को वाज़िया करती है, अपनी लाइफ को बनाओ, बेदार रहो, गर्मी तुम्हें मार ना पाए, गुर्बत बीमारी तुम्हें मार ना पाए, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ पर वो अटैक ना कर पाए। लेकिन तभी ये सब कुछ होगा जब हम रोज बाइबल को पढ़ने वाले हैं, रोज बाइबल को फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि शैतान जानता है अगर हमने इसे पढ़ा हम इसे अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करेंगे। वो नहीं चाहता कि हम इसे पढ़ें। अब आप आजमाओगे, जब आप बाइबल पढ़ने लगते हो नींद आना शुरू हो जाती है, पर ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं, ये इविल स्पिरिट है जो जिंदगी की बातों में हमें मगन होने नहीं देती। और जीसस हालेलुया। आइए अपने स्वरों को झुकाइए, ग्रेस को मांगिए, बुलंद आवाज में खुदा की ग्रेस को मांगिए ताकि हम बाइबल से प्यार करने वाले हो, हम बाइबल से प्यार करने वाले हो, हम इसको पढ़ने और हकीकतों के मुतलाशी हो और सच्चाइयां हमारी अकल को कस पाए, ये सदाकतें हमारी आत्मिक कमर को बना पाए। और जीसस हालेलुया, mighty Jesus hallelujah, praise the Lord Jesus hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा यहोवा मेरे नाल है। मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा यहोवा मेरे नाल है। मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखा लाके दूत मेरी राखी लियो कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखा लाके दूत मेरी राखी लियो कलदा। केड़े शब्दां ओदा करा धन्नवाद, केड़े शब्दां ओदा करा धन्नवाद, हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा यहोवा मेरे नाल है। गाइए मेरे साथ, मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होशना दे नारे असीं लावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होशना दे नारे असीं लावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होशना दे नारे असीं लावांगे। लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, ओही साडी सुर नाले ताल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डोला,
میرا